Hello student, today we are going to discuss about superposition theorem. Okay, what do you mean by superposition theorem? If there are many charges are placed in a space, suppose this is a three coordinate system, x-axis, y-axis and this is z-axis, three coordinate system. Okay, and there are many charges present there. Okay, so in superposition theorem we can find, by using this theorem we can find the force experienced by any one charge due to all the other charges. Superposition theorem states that, here you can see, here there are three charges. Suppose this is a coordinate system x, y, z, charge 1, charge 2, charge 3. There are three charges, charge 1, charge 2, charge 3. Charge 1 is having position vector r1, which is at a distance of r1 from origin. You can see q2 is at a distance of r2 from origin O, and q3 is at a distance of r3 from O. Now the question is how to find the force experienced by this q1 charge. In Coulomb's law we have studied that if there are 2 point charge we can find the force between them. Here you can see there are three charges and the question is how to find the force experienced by this q1 charge. This is the question. Okay, so from superposition theorem the force experienced by this charge q1 is equal to the force experienced by vector sum of force exerted by q2 charge and vector sum of force exerted by q3 charge. It means force experienced by q1 charge is equal to force experienced by charge 1 due to 3, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 ड्यू टू 2. सिंपल वर्ड में यहां पर तीन चार्ज है, तीनों चार्ज r1, r2, r3 डिस्टेंस पर है. ठीक है, ओरिजिन से. तो q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमें बताता है. सुपरपोजिशन थ्योरम से हम q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये हम निकाल सकते हैं. कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज F1 एंड फोर्स इज गिवन बाय, वो फोर्स की जो वैल्यू होगी इसके कारण फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये इस पे एक साइड फोर्स लगाएगा, ये भी इस साइड इस पे फोर्स लगाएगा. इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 3. Q3 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, उस फोर्स का नाम क्या होगा, दैट इज F13. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F13? force experienced by charge 1, force experienced by charge 1 due to charge 3. What is the meaning of F12? force experienced by charge 1 due to charge 2. ये भी इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स इधर लगाएगा, क्योंकि तीनों चार्ज कैसे हैं, तीनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तीनों पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है. तो ये चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा. तो नेट फोर्स इसने कितना एक्सपीरियंस किया, दिस नेट फोर्स इज गिवन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. यही सुपरपोजिशन थ्योरम से हमको मिलता है कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसका नाम F1 है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ बोथ फोर्सेस. वेक्टर सम डिफरेंट होता है, स्केलर सम डिफरेंट होता है. स्केलर में डायरेक्ट एडिशन होता है, वेक्टर में लॉ लगता है. ओके, लॉ से लगा करके हम ऐड करते हैं, आइदर ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो. तो यहां पर वही लिखा है F1 फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 फॉर 2 चार्जेस. इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, here only 2 charges I have considered. If there are n number of charges, then how to find the force? The force is F12 plus F13 plus dot 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 force experienced by charge 1 due to charge n, and the charge n is at a distance of Rn. चार्ज n भी है, बहुत सारे चार्जेस है,
तो n चार्ज कहां होगा, nth Rn डिस्टेंस पर होगा। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F12? वेरी सिंपल, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन चार्ज 1 and charge 2. हाउ टू फाइंड? K, that is electric constant. First is Q1 charge. We have to write modulus of Q1. Modulus of Q2 charge is there. That's why Q2 charge. F12 is where it is. It is here. तो ये और इसके बीच में फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसके और इसके बीच का डिस्टेंस that is R21 और R12. Distance is same, but the direction is different. R21 direction I have taken in many book. Different direction given. In many book. कुछ बुक में इस साइड से लिया, कुछ बुक में ऐसा लिया, आप कोई भी ले सकते हो, मेंशन कर देना आप कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो। मैंने क्या किया है, मैंने R21 का डायरेक्शन इस साइड रखा है। देन फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R21 स्क्वायर, बोथ आर सेम। अब दिस इज वेक्टर, नाउ दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर वेक्टर। विच वेक्टर हियर यू कैन सी, दिस इज वेक्टर R21 वेक्टर। मैंने यहां R21 क्यों लिखा, R12 क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा मैंने यहां R21 इसलिए लिखा है क्योंकि F12 की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैंने किसकी मानी है, R21, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इफ यू वांट टू राइट R12 मींस आई हैव टू पुट नेगेटिव साइन बिकॉज डायरेक्शन विल रिवर्स। पॉजिटिव इज, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव आई हैव टेकन, सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। क्लियर? सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये तो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था। R21 का वैल्यू क्या होता है, R1 माइनस R2, ये फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि R21 क्या होता है, R1 माइनस R2, ट्रायंगल लॉ से मैंने बताया था डायग्राम बना करके। सो R21 इज इक्वल टू R1 माइनस वेक्टर R2, दिस इज वेक्टर सबट्रैक्शन, एंड R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? सो यहां पर ये मैग्नीट्यूड है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस R21? दिस इज मॉडुलस, मींस इट मींस वेरी सिंपल, यू सी R21 इट मींस मॉडुलस ऑफ R21 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R21 स्क्वायर। इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में पॉजिटिव लेंगे, और R2 माइनस R1 का स्क्वायर लिखो या R1 माइनस R2 का स्क्वायर लिखो, दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं R21 स्क्वायर, ऑल आर इक्वल। तो मैं यहां इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूंगा। R12 बोथ आर मैग्नीट्यूड, R12 और R21 है क्या, R12 यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहां से यहां के डिस्टेंस या यहां से यहां के डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है, सेम होती है। नाउ देयरफॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन F12 को हम क्या लिख सकते हैं, K mod of Q1 mod of Q2 R1 minus R2। इफ यू सॉल्व दिस, R1 minus R2 मैंने लिख दिया, यहां सेम जैसा लिख सकते हो, इजी रहता है। R1 minus R2 होल क्यू, स्क्वायर है, पावर 1 है, पावर 3 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F13? F12 ऐसा है तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, F13 K Q1 Q3 ब्रैकेट 12 में 1 माइनस 2 था तो 13 में क्या होगा, R1 माइनस R3। ओके, R1 माइनस R3 होल क्यू, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली F1n विल बिकम K Q1 फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड चार्ज इज Qnth चार्ज, दैट इज Qn bracket R1 minus R3 I have taken here, that's why I have written R1 minus Rn। 1 3 था तो 1 3 किया, 1n रहेगा तो R1 minus R1 करेंगे, this is whole Q। So from equation 1 you can see what is F1, force experienced by this charge is equal to vector sum of all the forces। nth चार्ज है, मैंने तो 2 करके बनाया, ऐसे करके n चार्ज है अगर सिस्टम में 3 डायमेंशन में अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो कॉमन क्या है, K Q1 यहां भी है, K Q1 यहां भी है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन K Q1 ब्रैकेट। व्हाट इज द डिफरेंस फॉर F12? हियर यू कैन सी वी हैव टू राइट F12 F13 F14 डॉट 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 F1n। सभी में कॉमन क्या है, K Q1, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन K Q1। नाउ डिफरेंस इज
First difference is Q2 R1 minus R2, and this term is different. Here also this term is different. This is modulus term. Okay, modulus means we have to take only positive sign. Now R1 minus R3 whole cube dot 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 for nth charge Qn charge R1 minus Rn cube. Okay, so in general term what we can write, what is the value of K? K is what? K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught R. And if the charges are placed in vacuum or air, it means ER value is what? ER value is 1. So this will become, here you can write, it is 1. The formula will become Q1, K value is 1 by 4 pi epsilon naught, Q1 upon this, bracket, summation sign we can use because you know the meaning of summation. Okay, summation bracket I is equal to 1 to I is equal to n Qi R1 minus Re. What is the meaning of this? Summation means addition. Suppose if you put value of, first we will take the value of I1, it means Q1 bracket R1 minus, it start from 2, first Q1, if the first value of I is, अगर पहला वैल्यू 2 लेते हैं तो R1 minus R2 मिलेगा, R1 minus R2 का होल क्यूब. समेशन मींस प्लस साइन, प्लस आ गया. नेक्स्ट I की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी. तो 2 होगी तो कितनी हो जाएगी बताओ? सॉरी 2 तो थी पहले, नाउ इट विल बिकम 3. सो 3 R1 minus R3, R1 minus Ri, that is now I value is, I की वैल्यू कितनी हो रही है? 1. पहले 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे यू हैव टू पुट एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट as it is. Now what is the meaning of F1? I have written here, F1 is force experienced by charge 1. What is the meaning of F1n? Force experienced by, what is the meaning of F1n? Force experienced by charge 1 due to charge n. What is the meaning of F13? Force experienced by charge 1 due to charge 3. Okay, what is the meaning of F14? Force experienced by charge 1 due to charge 4. ऐसे कई चार्ज के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट आपको हर जगह मिल जाएगा. ठीक है, मैंने आपको समझाया. एंड सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. यहां मैंने फोर्स के लिए बताया, सेम इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लगा सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जब सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं उसमें एक बात आप याद रखना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें इसके और इसके बीच के फोर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ता है. फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 निकाल रहे हैं तो हमें इसके और इसके बीच का फोर्स नेग्लेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, जिसकी बात हो रही है बस उसी का फोर्स लेना पड़ता है. द फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q3 वी हैव टू नेग्लेक्ट व्हाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, थैंक यू.